So, good morning, everyone. As we have already completed with our portion of coming of Prophet Muhammad and then of four caliphs, the Umayyads and Abbasids, and then the Crusades. So we were left with one little story that is mentioned about this period, and I am repeating it for you people so that you understand it again. Now, as I already told you, कि जो relationship between the Muslims and the Christians became harsh and bitter because of the crusades that were fought between these two religious groups. Now, इसमें हम ये देखेंगे कि ये एक इंसिडेंट अपने को दिया हुआ है about the France in Syria. Now, इसमें they have told us that the Frankish lords used to treat Muslims differently. जो हम देखेंगे initially settled लोग थे वो Muslims के साथ इतना harsh नहीं थे as compared to the people who are new to this place. Now we have been given the records of a Muslim person of 12th century who actually belonged to Syria, and his name was Usama ibn Munkid. He has mentioned that among the Franks who have settled in this country, that is in Syria, had certain association with few Muslims. Now, as I've already told you that these were better than the newcomers, but the problem was that कि ऐसा नहीं है कि if the Muslims are maybe treated a bit nicely, that does not mean that they can interfere in the governance. They had to be restricted और थोड़ा उनके ऊपर जो रूल कर रहे थे वो बहुत सारे restrictions के थ्रू थे और ऐसा नहीं है कि it was compulsory to have such a behavior. Now, one example that we are talking about is about a person. He said that once I sent a man to Antioch on business. Now, at that time, the Christians were ruling over that area, and the name of the chief was Theodore Sophianos. Now, he and this person who has mentioned this records were friends. Now, because they were friends, so he invited these people to his area because he was an influential person of that time. Now, he said that one of my Frankish friends has invited me and said that come with me and see how they live. The man obviously told him, and because of which he with that person he went to the Frankish area. Now the person who called them was actually somebody who was a retired knight matlab a kind of soldier who had first come with the Frankish expedition, पर अब वो जो है retire हो गए थे. He had his own property in Antioch, and by this time he was a person who was respected in this area. Now he produced, when they reached his home, his place, he produced a fine table for them with food which was tasty as well as it was served very nicely. But he was initially, he saw that this person was reluctant to eat. Why? He said he initially was a bit hesitant कि खाना चाहिए मुझे या नहीं खाना चाहिए. But जिनके घर पे उनको invite किया गया था, he told them to eat to your heart's content. मतलब जितना मन है पेट भर के आराम से खाओ. क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं जो है मैं फ्रैंकिश फूड नहीं खाता हूँ, मेरे लिए अलग से इजिप्शियन वुमेन है जो कुक करती हैं फूड और उनका बनाया हुआ खाना ही मैं खाता हूँ, और मैं स्वाइन यानी पिग का फ्लैश तो मेरे घर पे आता भी नहीं है. सो उसको उन्होंने बोला कि आप ध्यान से मतलब यू ईट इट, दिस फूड इज सेपरेटली प्रिपेयर्ड फॉर यू. तो उन्होंने बोला मैंने खाया खाना पर बहुत सावधानी से खाया, एंड उसके बाद मैं वहां से निकल गया. एंड आई वेंट फॉर वॉकिंग टू द मार्केट कि देखता हूँ मार्केट कैसा. अब जब वो मार्केट पहुंचे तो अचानक से उनको एक विमेन ने उनका हाथ पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया और है ना कुछ कुछ बोलने लगी बहुत मतलब फास्ट स्पीड में, जो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट एक्चुअली शी वांट्स टू कन्वे. और वो इस तरीके से चिल्ला रही थी, शाउट कर रही थी कि क्राउड इकट्ठा हो गया था, सारे क्राउड ऑफ फ्रेंड्स जो है उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे. एंड ही वाज एक्चुअली रियली स्कैर्ड कि अब तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, हो सकता है जो आज का उसका दिन हो वो आखिरी दिन हो, ऐसी सिचुएशन में वो पहुंच गया था. एंड ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब व्हाट इज द लेडी सेइंग.
तो अचानक से जिनके घर में वो इनवाइटेड थे, वो जो नाइट है वो आ गए थे और उन्होंने उस वुमेन के पास आके बोला कि क्या चाहिए आपको इस मुस्लिम से। तो उस लेडी ने बोला कि इसने है ना, इस मुस्लिम ने उस लेडी के ब्रदर को मार दिया जिसका नाम था हुर्सो। तो जो हुर्सो एक्चुअली में क्या है, उसको किसी जब कोई फाइट में आर्मी और हामा थी वहां पे मुस्लिम्स ने मार दिया था। तो बिकॉज ही वॉज मुस्लिम सो शी एसोसिएटेड कि मुस्लिम तो इसने ही मारा है। देन क्या हुआ, दिस नाइट शाउटेड एट हर एंड सेड कि ये कोई आर्मी मैन नहीं है, ना ये कभी वॉर लड़ने जाता है, ये तो एक बुर्जासी है। बुर्जासी का मतलब मर्चेंट है, जो ट्रेड करता है और ये ट्रेडिंग के लिए ही आया है, ये कभी वॉर लड़ने नहीं गया। फिर उस नाइट ने तेज मतलब बहुत लाउड वॉइस में क्राउड की तरफ भी शाउट किया कि वो क्यों इकट्ठे हो रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, एवरीवन लीव डिस्पर्स। तो सारे के सारे लोग वहां से चले गए। उस नाइट ने इनका हाथ पकड़ा जो अपने को रिकॉर्ड बता रहे हैं और उनको जल्दी से वहां से लेके चला गया। तो इस इंसिडेंट के बाद इसको लगा कि आज तो इसकी लाइफ सिर्फ इसीलिए बची थी क्योंकि उन्होंने जो रिस्पेक्टफुली उसको खाना ऑफर किया था वो उसने कंज्यूम कर लिया था। अगर वो नहीं करता, अगर वो ऑफेंडेड फील होते तो वो क्या अभी बचाने नहीं आते क्या। तो ये जो स्टोरी है ये अपने को सिर्फ इतना बता रही है अभी प्रेजेंटली कि वहां पे जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। हिंदू और मुस्लिम के बीच में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, हम बोलेंगे, डिफरेंस आ गया था, बहुत बड़ी दीवार जैसे आ गई थी कि वो लोग जो है एक दूसरे को, मतलब फ्रॉम इनसाइड दे हैव द फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स। क्योंकि ऑब्वियसली वॉर में एक साइड, जिस भी साइड के लोग मरते हैं, जो दूसरी साइड के लोग हैं वो उस अपने अगेंस्ट ओपोनेंट वाली की पूरी कम्युनिटी को ही खराब समझ लेते हैं। तो इसीलिए ये जो बिहेवियर है ये अपने को सिर्फ इतना बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह चलता था, पर जो कॉमन लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो फीलिंग ऑफ हेट्रेड और नफरत, डिस्ट्रस्ट और ये हार्श बिहेवियर जो है एक दूसरे के तरफ था। So with this we have actually come to the end of the जो बोलेंगे political expansion along with the religious kind of expansion, जिसकी तरफ अपने end किया था कि towards the end of the crusades अब वो लोग focus कर रहे थे political expansion और ये religious expansion की तरफ वो लोग कम focus कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे political stability आए, सोसाइटी भी थोड़ी अनरेस्ट से रेस्ट पे आ जाए, आराम से रहे ताकि अपनी दूसरी चीजों पे फोकस कर सके। तो ये तो अपनी बेसिक हिस्ट्री आ जाती है। अब अपने पढ़ते हैं यहाँ पे कि इकोनॉमी कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था और किस टाइप के इनकी हम बोलेंगे कॉमर्स था, कितनी एरिया अर्बनाइज थी। ये सारी जो डिटेल्स हैं, दीज आर आवर नेक्स्ट मेजर टॉपिक दैट वी विल ट्राई टू complete in today's class. Now because agriculture was the principal occupation, initially से starting से agriculture जो है इनका main occupation था। और जब ये नई टेरिटरीज कॉन्कर की गई, जब मुस्लिम्स ने और अरब्स ने इनिशियली रोमन पे कॉन्कर किया तो इन्होंने उसको कोई वहां पे कोई चेंज नहीं लाए, इन्होंने मेन वहां पे इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर ही चलने दी। अब जो लैंड है इट वाज ओन्ड बाय बिग एंड स्मॉल पेजेंट्स एंड इन सम केसेस बाय द स्टेट, यानी जो लैंड है वो बिग पेजेंट्स के पास भी था, स्मॉल पेजेंट्स के पास भी था और कहीं कहीं जो स्टेट थी यानी जो मेन पॉलिटिकल गवर्नेंस थी उनके अंडर भी थी। नाउ इन इराक एंड ईरान land existed in fairly large units cultivated by peasants, यानी इराक और ईरान में मेनली हम देखेंगे कि लैंड जो है वो बहुत बड़े बड़े थे जहाँ पे की कल्टीवेशन होती थी पेजेंट्स के थ्रू। एस्टेट ओनर्स जो थे वो क्या करते थे, वो लोग टैक्सेस कलेक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, यानी कि टैक्सेस जो हैं वो डायरेक्ट स्टेट नहीं कलेक्ट करते थे, वो जो उन बड़े एस्टेट्स के ओनर्स थे वो लोग करेक्ट करते थे और उसके बाद वो फाइनली आगे गवर्नेंस में देते थे। तो जो सैसेनियन और इस्लामिक पीरियड्स दोनों में ये चीज चलती रही कि एस्टेट ओनर्स जो है वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। नाउ इन एरियाज दैट हैज मूव्ड फ्रॉम पेस्टोरल टू सेटल्ड एग्रीकल्चर, ऐसा माना जाता था कि लैंड जो है इट विल बी द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज। सी इनिशियली क्या था, पेस्टोरल एरियाज में क्या होता है कि आप अपने एनिमल्स को ग्रेस करवाने लेके जा सकते हो,
तो ऑब्वियसली वो एरिया जो है वो एक किसी इंडिविजुअल का तो होगा नहीं, वो पूरे के पूरे उस ग्रुप का होगा, यानी कि पूरे के पूरे उस विलेज का होगा. So obviously this means that it was the common property of the village. So now when pastoral area is also converted into a settled agricultural system, then also this property was the common property of the village. Now जो big estates थे, they were abandoned by their owners after the Islamic conquest. यानी जो बहुत बड़े estates थे, बहुत बड़े बड़े लैंड एरियाज थे, उनके जो ओनर्स हैं वो उनको छोड़ के इसलिए चले गए थे क्योंकि जब कॉन्क्वेस्ट हो रही थी और लड़ाई वगैरह हो रही थी, तो फिर क्या हुआ कि ये जो एस्टेट ओनर्स है ये वहां से चले गए. तो ये जो लैंड्स है अब किसके अंडर आ गए थे? ये आ गए थे अंडर दी स्टेट, यानी अंडर दी कंट्री, जो गवर्नेंस है उसके अंडर. उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लैंड्स है इन स्टेट ने किसको दे दिए? मेनली जो मुस्लिम एलिट थे, यानी जो मुस्लिम के मेन रिच पीपल थे या जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर्स थे एम्पायर्स की, उनको दे दिया गया. और ये कौन से लोग थे? ये एलिट वो थे जो मेनली कैलिफ की फैमिली से रिलेटेड थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. मतलब देखो लड़ाई के टाइम वहां के जो ओनर्स थे वो अपने लैंड छोड़ के चले गए, लैंड आ गए गवर्नमेंट के पास, यानी इस्लामिक रूल में आ गए. इस्लामिक रूल में आने के बाद इन लोगों ने उसको दे दिया मुस्लिम एलिट्स को. मुस्लिम एलिट्स कौन थे? मुस्लिम एलिट्स वो लोग थे जो कैलिफ्स जो है उनके उनसे रिलेटेड है, उनके फैमिली के, चाहे दूर के पास के, पर फैमिली से रिलेटेड है, रिलेशन वाले हैं. जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर टोटल कंट्रोल जो है वो स्टेट का ही था, बिकॉज जो मेजर इनकम थी स्टेट की वो आ जाती थी फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू. इनिशियली तो जब तक कॉन्क्वेस्ट चल रही थी तब तो प्रॉपर है कि जो लूट्स और प्लंडर्स हैं उनसे आराम से रेवेन्यू मिलता जा रहा था. जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये लोग अपनी जो रेवेन्यू और जो लिविंग है वो सारी जो वेल्थ है वो इसी से इकट्ठा करते हैं. पर लेटर ऑन जब कॉन्क्वेस्ट बंद हो गए और इनकम पे और कंट्री पे ज्यादा फोकस देने लग गए ये लोग, तब इनका जो मेन इनकम का सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू, ऑब्वियसली फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड्स. अब जो लैंड्स दैट वर वंस कॉन्कर्ड बाय द अरब्स remained in the hands of owner were subject to खर्च. Now understand this very clearly. जिस एरिया को अरब्स ने अपने अंडर ले लिया है, पर वहां के जो ओरिजिनल ओनर्स हैं वो अभी भी वहां रह रहे हैं, उनको जो टैक्स देना पड़ता था उसको बोलते थे खर्च. आई एम रिपीटिंग, उसको बोलते थे खर्च. and it was equal to around either half to around 1/5 of the total produce. मतलब हाफ से या तो 1/2 और 1/5 इनके बीच में कोई भी अमाउंट जो है वो टैक्स की फॉर्म में इनको देना पड़ता था. और क्या एक्चुअल वैल्यू होती थी वो डिपेंड करता था कि वो किस चीज की कल्टीवेशन कर रहे हैं, किस एरिया में कल्टीवेशन कर रहे हैं और कैसा कल्टीवेशन हुआ है उस टाइम पीरियड में. इसके अलावा जो लैंड्स मुस्लिम्स के अंडर थे वहां पे जो टैक्स था उसको बोलते थे उश्र और वो होता था 1/10. सो यू कैन सी द डिफरेंस. खरज यानी जनरली वो लोग जो मुस्लिम्स नहीं होते थे, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, उन पे टैक्स ज्यादा होता था, अराउंड 1/5 से लेके 1/2 के बीच में होता था. whereas जो मुस्लिम्स जिनके अंदर लैंड होता था उनसे जो टैक्स लिया जाता था वो होता था उश्र, जो होता था 1/10 of the produce. अब just think with the point of the people who are non-Muslims. वो सोच रहे हैं अगर हमें टैक्सेस कम देने हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली हमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए टू बिकमिंग अ मुस्लिम, या हमें इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए ताकि हमें टैक्सेस कम पे करने पड़े. अब इतने ज्यादा लोग कन्वर्ट होने लग गए कि जिसके कारण क्या हुआ, जो इनकम ऑफ द स्टेट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गई. तो जब इनकम ऑफ द स्टेट धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गई तो फिर उसके बाद जो कंट्री के लोग हैं, यानी कि जो यहाँ पे हम गवर्नेंस में बोलेंगे, ये लोग जो है इनको ऐसे लगा कि इनकी इनकम धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गई. अब जब इनकी इनकम धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गई तो जो कैलिफ्स हैं उन्होंने अब कन्वर्जन को
डिस्करेज करना शुरू कर दिया। मतलब नाउ दे बिगैन टेलिंग पीपल दैट वी नीड टू स्टॉप दीज कन्वर्जन्स एंड उसको डिस्करेज करने लगे। फिर उन्होंने सोचा ऐसी तो होगा नहीं, तो व्हाट डिड दे डू, उन्होंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन लगा ली। यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन में इन्होंने क्या किया, दे सेड दैट फ्रॉम नाउ ऑन एवरीवन विल पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स, ताकि इनकी इनकम जो है वो रिड्यूस ना हो। नाउ फ्रॉम द 10th century onwards we will see दैट स्टेट जो है उन्होंने अथॉरिटी दे दी अपने ऑफिशियल्स को कि आप अपनी सैलरीज कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, फ्रॉम द एग्रीकल्चरल रेवेन्यू फ्रॉम द टेरिटरीज दैट आर अंडर देम, और इनको नाम दिया गया इक्तास, जिसका मतलब होता है रेवेन्यू असाइनमेंट्स। नाउ आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, 10th century तक जो स्टेट है यानी जो पॉलिटिकल पावर है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑफिशियल्स को बोला कि आप अपनी जो सैलरी है वो एग्रीकल्चरल रेवेन्यू से ले सकते हैं from the territories that are under our control, and these were called as iktas, and these iktas were actually the revenue assignments. Now along with this, let us just quickly complete this topic at least today. So with this we will see that यहाँ पे agriculture prosperity बहुत ज़्यादा थी because political stability भी थी. Now in many areas, especially जो नाइल वैली के आसपास है, वहां पे हम देखेंगे जो स्टेट है उन्होंने सपोर्ट किया था इरिगेशन सिस्टम को, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कैनाल्स, डिगिंग ऑफ वेल्स, जिसमें वाटर व्हील्स जिसको नोरिया बोलते थे वो भी उन लोगों ने वहां पे प्रोवाइड की। इसके कारण क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हुआ, हार्वेस्ट बहुत अच्छी हुई। इस्लामिक लॉ है ना, अब टैक्स कंसेशंस भी देती थी उन लोगों को जो नए लैंड को कल्टीवेट करते थे, नए लैंड को अंडर कल्टीवेशन लाते थे। तो ये जो पीजेंट्स का इनिशिएटिव था, इसके साथ साथ जो स्टेट उनको सपोर्ट कर रही थी, इसके कारण कल्टीवेशन बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, ज्यादा लैंड अंडर कल्टीवेशन आ रहा था और हर चीज में पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हो रहा था। जबकि ये सारा कुछ हुआ इन एब्सेंस ऑफ मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी कोई मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं आया था, सिर्फ जो गवर्नमेंट है और जो हम बोलेंगे कि गवर्निंग बॉडी के साथ साथ जो पीजेंट्स है, इन सबके एक्स्ट्रा हार्डवर्क और इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था, इसके कारण प्रोग्रेस हो रहा था, इन एक्सपेंशन हो रहा था, लैंड जो कल्टीवेशन के अंडर था और साथ में किस चीज का, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं थे, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एज सच नहीं आया था, स्टिल डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एंड लैंड एक्सपेंशन वाज देयर। अब इनका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया था, इतना लैंड आ गया था प्रोडक्शन के अंदर कि बहुत सारे क्रॉप्स नए उगाने लग गए थे, ये लोग ग्रो करने लग गए थे, जैसे कॉटन, ऑरेंजेस, बनाना, वाटरमेलन, स्पिनच, ब्रिंजल्स। और ये जो है ये सिर्फ ये खुद कंज्यूम नहीं करते थे, अब ये एक्सपोर्ट भी करने लग गए थे, इनको कहा, यूरोप में। दैट मीन्स विद दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमी जो है इनकी मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे और इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट किया था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन। With this, we have completed the major economy part of this chapter. So now we'll continue with the urbanization, commerce, and the other related topics in our next class. I suppose everything is clear. If you have any doubt, feel free to ask. Now we'll meet in the next class.